آپ کی ਉਹਦੀ 8ਵੀਂ آیت ਨੂੰ خدا دے کلام چوں پڑھاں گے. دوسرا تموتیس اس کا دوسرا باب اور 8ویں آیت. پوری سمجھ کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھنا ہے. آمین. سب نے نکال لی اس ورس کو. آئیے پھر پڑھتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح کو یاد رکھ. کس کو؟ بولے یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا. کس کو یاد رکھ؟ یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا. اور آگے، اور داؤد کی نسل سے ہے میری اس خوشخبری کے موافق. آمین. کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے پوری فتح سے کہہ دیجئے آمین. آج ہم عید القیامت المسیح کے موقع پر جو ہمارا آج کا عنوان ہوگا، زندہ یسوع کو یاد رکھیں. آمین. یا جی اٹھے مسیح کو یاد رکھیں. ہلیلویا. عنوان ہے زندہ مسیح کو یاد رکھیں یا جی اٹھے مسیح کو یاد رکھیں. اب تموتیس کو جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو تموتیس کو خط اس وقت لکھا گیا جب وہ افسس کے اندر ایک نوجوان جو 18-19 سال کا تھا اور ہنگامی حالت کے اندر اس پر ایک بڑی ذمہ داری عائد اس پر کر دی گئی. کیونکہ ہم جانتے ہیں جب ہم رسولوں کے مال کو پڑھتے ہیں تو افسس کے اندر جب خدمت کا کام بڑھنے لگا اور وہاں پر کیونکہ افسس شہر جو تھا یہ دیوی دیوتاؤں کی زد کے اندر تھا. اس کے اندر تھا. اور یہاں پر جو سنیارے تھے نا، ان کا کام بڑے روج پہ تھا. آپ کو پتا سنیارے ویسے دولت مند ہوتے ہیں. ان کی مورتیاں بکنا بند ہو گئی. لوگوں نے بتوں کی پرستش چھوڑ دی. انہوں نے ایک بڑا ہنگامہ کیا اور ایک بڑی کہہ سکتے ہیں انہوں نے بڑا ایک دھرنا دیا. اور وہ دھرنا جو تھا اتنی بڑی تعداد کے اندر تھا. آپ رسولوں کے مال کو جب پڑھیں گے تو آپ کو وہاں ملے گا. پھر پالوس رسول کو افسس سے ہنگامی صورت میں نکال دیا گیا. اور اس کلیسیا کو اس لیے یہ جو خط ہے تموتیس کے دونوں خطوط جو ہیں ان کو بائبل کالج کے اندر، سیمنریز کے اندر اور جہاں بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو پاسوانی خطوط بھی کہا جاتا ہے. یعنی وہ خطوط جو ایک پاسٹر کو لکھے گئے تاکہ وہ اپنی خدمت کے اندر ان اصولوں کو اپنائے، ان رویوں کو اپنائے جو کلام کے عین مطابق ہے اور جو کلام کے عین مطابق ہونے چاہیے. تو پالوس رسول نے تموتیس کو خط لکھتے ہوئے جہاں بہت سی باتوں کا ذکر کیا، وہ اس کے سامنے ایک بڑا چیلنج رکھ رہا ہے، ایک بڑی ذمہ داری اس کے سامنے رکھ رہا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ کیا کر؟ جی اٹھے مسیح کو یاد رکھ. اس کو رکھ. ہم صرف ہالےلویا کے نعرے عید القیامت المسیح کی باتوں تک محدود نہیں ہونے چاہیے. ہماری زبان پر جو فتح کے نعرے ہیں وہ صرف آج کے دن ختم نہیں ہونے چاہیے کہ سروس ختم ہو گئی، عبادت ختم ہو گئی، اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس بات کو بھول جائیں. ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں ہے اور یہ بھولنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ زندہ یسوع ہمارا فخر ہے. ہلیلویا. آمین. اور یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، یہی تو بات ہے اور جو شاید لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کو کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اور مجھے جب بھی کسی نے اکثر
ऐसा हुआ क्योंकि काफ़ी दफ़ा मुश्किलें आई खिदमत के अंदर, लेकिन उसका मकसद ये नहीं था कि आपसे वाह लेना या आपसे क्रेडिट लेना कि हम यीशु के लिए तकलीफ सह रहे हैं। यीशु ने जितनी तकलीफ़ें सहली हम उसके पास भी नहीं हैं कि जो उसने निजात के लिए की है। आमीन। क्योंकि जब आप मुनादी कर रहे होते हैं और फिर आप शहर बाय शहर मुनादी कर रहे होते हैं, लोग आपको जानते हैं, फिर आपके लिए चैलेंज भी ज़्यादा होते हैं। और कई दफ़ा कई दोस्तों ने मुनाजरे की दावत दी कि आप अपने मैसेज के अंदर जो है कि सिर्फ जो हम कर रहे होते हैं आप नहीं सुन रहे, और भी बड़े लोग बड़ी बरीक बेनी से सुन रहे होते हैं। तो फिर कई दफ़ा कॉल्स के ज़रिए, तो याद रखिए कि हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। क्या है? किसी के बाइबल मुकद्दस को किसी के साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है। आमीन। और इब्लीस क्यों कलाम के खिलाफ बातें करवाता है, क्यों लोग खड़े हो जाते हैं? क्योंकि इब्लीस का शुरू से मंसूबा ये रहा कि यीशु को नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि इब्लीस को प्रॉब्लम ही यीशु मसीह के साथ है। क्योंकि जो कोई यीशु को जान जाता है वो इब्लीस की काट को समझ आता है, वो जान जाता है कि कलाम में इसके बारे में क्या कहा गया है, और वो कभी नहीं चाहता कि लोग जो है उसको हारा हुआ जाने हैं, शिकस्त खुर्दा जाने हैं, उसे गिरा हुआ जाने, और उसको जानने के इसके पास कोई इख्तियार अब नहीं रहा। वो नहीं चाहता कि उसकी असलियत इंसानों पर खुल जाए। और किताब मुकद्दस एक वाहिद किताब है जो इब्लीस को इतना हाईलाइट करती है और हमें इतना प्रिपेयर करती है। क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस जब शैतान के बारे में बात करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमने डरना और खौफज़दा होना है। इसका मतलब ये है कि भाई हमने डरना और खौफज़दा नहीं होना, बल्कि हमने जी उठे यीशु मसीह को देखना है। आमीन। कई दफा हम इस बात को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह क्या है, जिंदा है। ये बात हमें याद रखनी है, इस पर हमें फोकस करना है कि यीशु मसीह क्या है, जिंदा है। हालेलुया। हाथों को उठा के बोलिए यीशु क्या है, जिंदा है। हाथों को उठा के बोलिए मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। और ये आवाज जो है ना, ये आज चर्च के जब आप बाहर जाएं तो ये आवाज जहां पर आपको नाउमीदी नजर आए ना, तो ये आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए। हालेलुया। जहां पर आपको परेशानी आए ये आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए। जहां पर आप बिसहार हो जाए ये आवाज आपके अंदर आनी चाहिए कि मेरा यीशु क्या है, जिंदा है। और जो जिंदा है ना वही निजात हिंदा है। आमीन। जो जिंदा नहीं है वो निजात हिंदा भी नहीं है। यीशु जिंदा है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में हम जब कलाम को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को जब 9 बजे सलीब के मकाम पर, खोपड़ी के मकाम पर सलीब पर लटका दिया गया, मसलूब कर दिया गया, और फिर 3 बजे जब मुल्क में अंधेरा था और कई राइटर लिखते हैं कि पूरी दुनिया में अंधेरा था, तो यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। जब यीशु ने अपनी जान दे दी और इस बात की तस्दीक कर दी गई, तो फिर यीशु मसीह की तदफीन की गई और एक शख्स उठा जो दौलतमंद था, क्योंकि कलाम की ये सच्चाई थी कि वो अगरचे बदकारों के दरमियान मरेगा पर दौलतमंदों के साथ वो दफनाया जाएगा। आमीन। और यीशु एक बेहतरीन कब्र के अंदर जो गार के अंदर बनाई गई थी और एक अमीर शख्स ने बनाई थी, और यीशु मसीह को दफनाया गया तो शाही तरीके से यीशु को दफनाया गया। अगर आप उस मसाले का रेट लगाएं ना तो आप आज के दौर में हैरान हो जाएंगे। मनों के हिसाब से है यीशु को मसाले के साथ दफनाया गया, और ये आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये शाही तदफीन थी तो यीशु मसीह को की गई। आमीन। शाही तरीके से यीशु मसीह, क्योंकि कलाम में ये था ना कि वो दौलतमंदों के साथ क्या होगा, शुमार होगा। तो दौलतमंदों के साथ, यानी बड़ा एक बिग रिच मैन की तरह यीशु मसीह की तदफीन की गई। और वो एक शख्स सामने आया जो गुमनाम था,
उसने, क्योंकि रसूलों में तो इतनी जरूरत नहीं थी, वो तो डरे और सहमे हुए थे, लेकिन कोई यीशु की लाश मांग नहीं सकता था। पर याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि चर्च के अंदर सिर्फ दुआ करने वाले लोग ही नहीं, ऐसे लोग भी होने चाहिए जो हाकिमों के सामने आपके लिए खड़े हो जाए। क्योंकि अगर देखो ना, रसूल तो डरे सहमे हुए थे, तो हर काम दुआ करने वाले नहीं करते, चर्च को हर तरह के लोगों की जरूरत होती है। आमीन। अब वो कौन कर सकता था? वही कर सकता था जिसकी रसाई थी, हैं, जिसकी पहुंच थी, और उसने अपनी पहुंच का सही टाइम पे सही इस्तेमाल किया। चर्च को हर तरह के लोगों की जरूरत है। कलाम कहता है यीशु मसीह के साथ जो थी वो दौलतमंद बहनें थी। क्या थी? दौलतमंद बहनें। पलूस के साथ दौलतमंद बहनें थी जो खिदमत के काम में सपोर्ट करती थी। खिदमत का काम ऐसे नहीं बढ़ रहा था। चर्च जो है, खिदमत का काम जो है, यीशु जब देखिए हर तरह के लोग इस खिदमत के अंदर हिस्सेदार थे। अब यीशु मसीह को जब तदफीन करने के बाद जल्दी जल्दी ये सारा काम किया गया, क्योंकि यहूदी दिन, मैं 12 दफा बातों को फिर रिवीजन कर रहा हूं कि यहूदी दिन जो था वो हमारी तरह 12 बजे से शुरू नहीं होता था, वो पैदाइश के मुताबिक शुरू होता था, यानी शाम 6 बजे से शाम 6 बजे तक। क्योंकि पैदाइश की किताब में क्या लिखा है? शाम हुई और है, और दूसरा दिन हुआ, यानी शाम से शाम तक। इसलिए जो 4 पहर थे, यानी जैसे ही शाम के 6 बजते थे, यहूदी कैलेंडर के अंदर एक दिन चेंज हो जाता था। ठीक है, इस तरह नहीं था कि रात को 12 बजे। आपने इस एंगल के साथ यीशु मसीह को देखना है। अब जल्दी जल्दी, क्योंकि आगे सब्बत था और एक खास काम होने वाला था आगे। यहूदी लोग जो थे एक बड़ी ईद की तरफ जाने वाले थे, एक जश्न की तरफ जाने वाले थे। तो यीशु मसीह को, अब जब यीशु मसीह को कलाम में देखें, किताबे मुकद्दस में हर एक बात रूहुल कुद्स ने इतनी तरतीब से लिखवा दी है, इतने सलीके से लिखवा दी है कि हर सवाल, हर नजरियात का, जिसका किसी ने सवाल उठाना था, कलाम में पहले उसका जवाब लिखा हुआ है। हालेलुया। कोई नजरिए आज उठा रहे हैं, तो कलाम ने पहले इशारों के जवाब दे दिए हैं, सिर्फ हमें कलाम को गौर से पढ़ने की जरूरत है। आमीन। यानी कई सवाल, नजरियात, जितने भी नजरियात है ना, अब मैं उनकी तरफ जाना नहीं चाहता। मैं आपको फिंगर्स पे कम से कम 20 से 25 सवालों के जवाब जो यीशु के जी उठने पर किए जाते हैं, मैं आपको फिंगर टिप्स में बना सकता हूँ। क्या क्या दुनिया यीशु के बारे में कहती है, और कलाम ने किसी बात को छोड़ा ही नहीं है। हर सवाल का जवाब, हर बिदअत का जवाब, हर नजरिए का जवाब, हर उस सोच का जवाब जो यीशु के जी उठने को गलत साबित करने के लिए लिखी जाती है, हर उस किताब का जवाब जो है पाक रूह ने रसूलों से लिखवा दिया था। आमीन। और कलाम ये कहता है कि जब यीशु मसीह को सलीब से उतारा गया और जब यीशु को कब्र की तरफ लेकर जागे, तो वो औरतें उसको देखती रही हैं, और तब तक देखती रही जब तक पत्थर लगा न दिया गया है। कलाम हमें बताता है, इसलिए औरतें कभी गलत कब्र पे जा ही नहीं सकती थी, हैं, क्योंकि वहां और बहुत सी कब्रें थी जिन्होंने जिंदा लोगों ने अपने लिए बनवाई हुई थी। इम्तिया के यूसुफ ने भी तो अपने लिए ही बनाई थी ना। तो उसका ये मतलब, यानी कलाम ने इतनी बरीक बीनी के साथ चीजों को किया हुआ है। और कलाम मुकद्दस में अगर बाइबल मुकद्दस के आप छोटे छोटे पॉइंट्स पर बात करें, तो आपको एक तस्दीक मिलेगी। हर सवाल का जवाब आपको 4 अनाजी के अंदर मिलेगा, हर नजरिए का जवाब आपको मिलेगा, हर सोच का जवाब आपको मिलेगा जो नाकदीन और मुखालफीन जो है अपने अंदर रखते हैं। इसलिए जब इन वाकयात को आप पढ़ें, तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि फिर जब यीशु मसीह को उन्होंने पत्थर लगा दिया गया, तदफीन का अमल कर दिया गया, और यीशु मसीह को दफनाया गया, और उसके बाद फिर भी सुकून ना हुआ। फकी फरीसी, हैकल के अच्छे सियासी लोग, वो फिर उस वक्त के हाकिम के पास चले गए और जाकर कहने लगे, क्योंकि यीशु ने
अपने आखिरी वीक के अंदर 12 दफा नबूवत की। क्या की? मत्ती के अंदर, मरकस के अंदर, लूका के अंदर, यूहन्ना के अंदर आप पढ़े। यीशु मसीह ने बार बार लिखा, वो शागिर्दों को तालीम देने लगा और कहने लगा, जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए। क्या है? जरूर है कि इब्ने आदम गैर कौमों के हवाला किया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन उसे मार दिया जाएगा। और यीशु ने कहा वो मरा नहीं रहेगा, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया, आमीन। फिर यीशु मसीह ने बताया वो यरूशलेम जाएगा, उसके मुंह पर थूका जाएगा, उसको ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। यानी यीशु मसीह ने फकीयों फरिसियों को मुखातब करके कहा, मैं इस हैकल को फिर क्या करूंगा, तीसरे दिन है फिर खड़ा कर दूंगा। यानी उसने अपने बदन की बाबत बात की। अब वो उनको ये बातें उनके अंदर थी, ये बातों ने उनके जहन के अंदर थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, उसको सलीब दे दिया गया, ओके, उसको मार दिया गया, ओके, पत्थर रख दिया गया, ओके, लेकिन अब एक काम कर, और काम ये करके तू रोमी मोहर लगा दे, कोई पत्थर को हटा ना सके। कई दफा लोग सवाल करते हैं, अगर मोहर लगी थी तो फिर औरतें क्यों चली गई? तो भाई ये बाद में लगी कलाम ये कहता है। यानी कलाम हर एक बात को इस कदर बरीक बीनी से लिखता है, वो कब्र दे के चली गई और ये कई घंटों के बाद दोबारा उसके पास के उसने कहा मोहर लगा दो। क्या नहीं, खाली मोहर नहीं, यानी सरकारी उसको दर्जा दे दो कि कोई शख्स इसको छू नहीं सकता। ठीक है ना, जिस तरह कोई चीज जो है वो सरकारी तौर पे उसको कर लिया जाता है, सील कर दिया जाता है, शाप को सील कर दिया जाता है कि आप उसमें दाखिल नहीं हो सकते। अब उस कब्र को सील कर दिया गया ताकि सरकारी उससे सरकारी कह सकते हैं, सरकार ने उसको अपने हाथों में ले लिया है उस वक्त की सरकार ने। और सिर्फ सरकार ने हाथों में नहीं लिया, बल्कि सिपाही भी बिठा दिए, पैरा भी लगा दिया है। उन्होंने क्या बस 3 दिन पैरा दे दो है, और 3 दिन के बाद ये पैरा हटा देना, फिर हम बताएंगे ये जो दावे करने वाला था, ये जो ऐलान करने वाला था है, ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला था, बस 3 दिन हमें दे दो, फिर हम दुनिया में खड़े होकर ये बताएंगे ये दावे करने वाले। क्योंकि उनके ज़हनों में कई लोग थे, हिस्ट्री में कई लोग गुजरे, हिस्टोरिकली कई लोग गुजरे, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े लीडर आए। याद रखिए, यीशु मसीह को जब आप यीशु मसीह को याद रखते हैं तो ये आपके जहन में होना चाहिए। क्या याद रखना है? कि यीशु मसीह कोल का पक्का है। आमीन। जी उठे मसीह को याद क्या रखना है? कि यीशु कोल का पक्का है, यीशु दावों का सच्चा है। उसने दावा किया ना, फिक्र ना करो, तो यीशु को कहते हैं ना, यीशु जी उठा है, तो फिर क्या करो, ये भी याद रखो कि वो जिंदा है और क्या करता है, अपने लोगों की फिक्र करता है। आमीन। वो उसने फिक्र नहीं छोड़ी, यीशु कभी हमारी फिक्र नहीं छोड़ता। उस पर भरोसा तो कीजिए, उस पर तवक्कल तो कीजिए, वो कभी अपने लोगों को भूखा नहीं रहने देता, डिसहार्ड होके है। क्योंकि अगला जो आया था दिन, यही सब्बत का दिन, इतवार का दिन, ते कलाम ये कहता है कि रसूल ना डिसहार्ड हो के ना ते दोबारा किथे चले गए, उन्हें क्या वो दोबारा जाल छल पाइए है, ते दोबारा मेहनत करिएगा। और यीशु नहीं है तो स्टोरी मुक गई, खत्म हो गई स्टोरी। सारी रात मेहनत करते रहे, दोबारा सारी रात खपदे रहे हैं। और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि खुदा का फजल ना हो तो आपकी सारी मेहनतें आपको फायदा नहीं देती है, आपकी सारी स्ट्रगल आपको फायदा नहीं देगी। और क्या हुआ, उसको फिक्र थी ना जी उठने के बाद भी है, वो शिकार सारी रात करते रहे। जब किनारे पर आए कहना आ जाओ आ जाओ, बड़ा कर लिया है। और कैसी ये दुनिया च देखो फिर कैसी कमाल गल है, ये जी अजकल जी महंगी तरीन डिश है ना, है केड़ी फिश दी ग्रिल, यीशु ने ग्रिल ला के रखी थी सामने है। आओ
याद रखिए वो जो उनके लिए ग्रिल लगा के रख सकता है वो आपके लिए भी रख सकता है। इस बात पर ईमान को जिंदा है। आमीन। क्या है? यीशु को जिंदा, यीशु को याद रखिएगा कि वो कभी अपने लोगों को भूखा सोने नहीं देगा। ये जिंदा रहने का समझिए यीशु जिंदा क्यों है। आगे बढ़ते हैं तो कलाम ये कहता है, मोहर लगा दी, पैरे बैठा दिए, एक बड़ा उन्होंने माइंड सेट कर दिया है। और यीशु ने जब अपना काम पूरा कर लिया जो सुबह जो हमने सीखा था, कफारा भी दे दिया और सारे काम मुकम्मल कर लिए, और सुबह अपने कौल के मुताबिक क्या हुआ कि जमीन लरसी और पत्थर हट गया और यीशु कब्र में से बाहर आ गया। हालेलुया। और पहरेदार वाले जो थे ना, कई थे बेहोश हो गए, तो कईयां भी यीशु ने होश ही रखे ताकि कोई खबर भी तो देर ना जाके गए। और इसलिए मैंने आपको कई दफा कहता हूं कि सबसे पहले यीशु के जी उठने की खुशखबरी देने वाले मुखालफ ही थे। औरतां ने भी नहीं पता है, शायद किसी ने नहीं पता, तो पहली खुशखबरी कहाँ गई? पहरेदारों ने दी। कहाँ दी? हाकिमों को, सरदारों को, हैकल को, नाकदीन को, मुखालफीन को। वो भी बड़े चालाक थे। उन्होंने कहा, ओहो बुलाओ सारे, इनको पैसा दे दो, है इनके मुंह बंद कर दो। पर याद रखिएगा, किसी के मुंह बंद करने से, किसी के सर पर तलवार रखने से, घड़ों को जलाने से है, धमकियां देने से ये कभी पैगाम नहीं रुक सकता। हम हाथों को उठाकर ये ऐलान करते हैं और ये सच है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। यीशु खबर पर फाते है। हालेलुया। उसने खबर और मौत पर फतह पाई है। हालेलुया। आमीन। ये पैगाम रुक नहीं सकता। आमीन। किताबें मुकद्दस कहती है कि यीशु जब मुर्दों में से जी उठा, यीशु 10 से ज़ायद मर्तबा लोगों पर जाहिर हुआ। कितने? 10। और यहाँ तक यीशु ने, मैंने बताया, हर बात का जवाब दे दिया। बहुत से लोग समझते थे शायद यीशु कोई रूह को देख रहे थे और वो समझ रहे थे कि नहीं, यीशु ने बताया, इस बात को वाज़ेह तौर पर बताया। और जब तूमा ने कहा था कि जब तक मैं उन मेखों में है तो मैं यकीन नहीं करूंगा, तो आ गया। जब कट्ठे थे तो कहा अल्लाह पाल है, अवेल हथालू है, कोई नजरिया नहीं, कोई बात नहीं, ये सच है। आमीन। यीशु नासरी ने हर एक बात का जवाब, हर चीज की। अब याद रखिएगा, अब हमने याद क्या रखना है? जी उठे यीशु को याद रखना है। आमीन। क्या करना है? जी उठे यीशु को याद रखना है। जिसके जी उठने का सबूत कलाम में मौजूद है, जिसके जी उठने का सबूत जो है वो दुनिया की तारीख के अंदर मौजूद है, जिसके जी उठने का सबूत, और जिसके जी उठने का सबूत हम सब हैं। आमीन। अगर यीशु हम पर जाहिर ना होता तो हम यहाँ पर कभी ना होते। वो भाई, जब यीशु मसीह ने ना, एक बड़ी कमाल बात थी, और यीशु ने एक गल नाल कही सी। वो ना वो शागिर्द जो थे, उन्होंने कहा, यीशु से कहा, हमने तेरी खातिर क्या किया है? घर बार छोड़ दिए हैं, माँ बाप छोड़ दिए हैं, और अपनी। यीशु ने कहा, तुसी इंजील दी खातिर ते मेरी खातिर हाले कुछ भी नहीं छड़िया। क्या है? दोनों बातें यीशु ने की, ना मेरी खातिर ना कुछ नहीं छड़िया। और वो बात साबित हुई कि जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो फिर, लेकिन जब ये उनको समझ लग गई ना कि जान देने में ही फतह है। आमीन। क्या है? क्योंकि यीशु ने कहा, जो कोई अपनी जान खोएगा अपनी जान बचाएगा। क्या करेगा? यीशु ने कहा उनको, जो कोई अपनी जान वो अपनी जान बचाएगा। तो यीशु मसीह ने असल में जो रेवलेशन दिया था, जो मेरे साथ मरेगा वो हमेशा जिंदा भी रहेगा। हालेलुया। आमीन। तो वो हमेशा जिंदा रहेगा। आमीन।
तो बाद में जब उनको समझ लग गई ना, जब उन्होंने वाकई छोड़ दिया तो फिर वो नजर आए। आमीन। क्योंकि उनको रेवलेशन समझ लग गई थी। और पौलुस का भी तो यही मसला था, वो जो लोगों को मारता, सताता, दुख देता, तकलीफ देता था लोगों को, और वो कहता था नहीं नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता, ये जिस यीशु को हमारी आंखों के सामने सलीब कर दिया गया, मसलूब कर दिया गया, वो कैसे जिंदा है। तो याद रखिएगा, फिर दमिश्क की राह पर है यीशु उस पर जाहिर हुआ। आमीन। क्या हुआ? और जब उस पर जाहिर हुआ ना, जिन्ना बंदा डिंगा होता है ना, तो यीशु फिर उन्हें डिंगे तरीके नाल इजाजत देता है। हैं की करदा है? हाँ, डिंगे बंदे का इलाज भी यीशु करे है। फिर उन्होंने सिर लत्तां नूं तां नूं ते सिर ठां नूं करके तौबा करवाता है। की जी? बोलो बोलो। अखां बंद होईयां ना, ते फिर डिगा ना पिछे नूं, ते आवाज आई तो कराई ना तौबा। फिर और कैसे कराई? वो फिर हर वो शख्स पर डील करना यीशु जानता है। फिर उसको समझ लगी कि कलीसिया जो है वो झूठ नहीं बोलती, कलीसिया सच बोलती है कि यीशु जिंदा है। आमीन। और जिन जिन पर रेवलेशन खुल जाता है यीशु जिंदा है। अब यीशु को याद रखना है। क्या करना है? यीशु को याद रखना। जी उठे, यीशु को क्यों याद रखना है? मैं 4-5 बातें आपको टिप्स दे के 4-5 आपने सबसे पहली बात याद रखना है। आप जब मुश्किलों के अंदर हो ना, तकलीफों के अंदर हो, बल्कि एक ऐसा शख्स हमें नजर आता है कलाम में जो मरने पे भी बड़ा उम्मीद है। क्या है? और अयूब के बारे में ना कहता है, मैं जानता हूं मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है। हालेलुया। क्या कहता है? कहता है जब मैं मर जाऊंगा, मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो जाएंगे, मेरी हड्डियां मिट्टी में मिल जाएंगी, मेरा जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा है। और मैं जानता हूं अगरचे मेरा जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, मेरे गुर्दे फना हो जाएंगे, मेरा अंदर फना हो जाएगा, पर मैं एक बात जानता हूं कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है। आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। हालेलुया। और मैं उसे फिर देखूंगा। क्या करूंगा? मेरी आंखें देखेंगी ना कि बेगाना की। यूब 19 बाब के अंदर। अब याद रखिएगा, जब हम जी उठे यीशु को याद रखते हैं ना, फिर हमें मौत का खौफ नहीं होता। ठीक है ना? ये नहीं होता, फिर हमें मौत का खौफ नहीं होता। हम फिर कह सकते हैं, फिर हम मुतमिन होते हैं, हम अपनी जिंदगी के अंदर मुतमिन होते हैं। और फिर न सिर्फ हम मुतमिन होते हैं, बल्कि हमारे घर वाले भी मुतमिन होते हैं। आमीन। क्या होते हैं? कई दफा बड़ा सवाल उठाया जाता है, काजी साहब आप तो मना करते हैं इन बरसियों से और इन चीज़ों से। ये और भाई मैं ये कहता हूँ कि आप देखों को मत देखें, अब जी उठे यीशु को याद रखें। किसको देखें? यीशु को याद रखें। किसको याद रखें? यीशु को। सिर्फ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। वो क्यों जिंदा हुआ? वो इसीलिए जिंदा हुआ ताकि जो मुर्दा है वो भी क्या हो जाए? जिंदा हो जाए। जी उठे मसीह को याद रखें। अगर आपको डाउट है कि बंदे का ड्रेस गलत थी ना, तो फिर आपके पास हक है कि आप अपनी तसल्ली के लिए कुछ करें। और जरा बंदा डाउट है ना किसी को, तो फिर अपनी तसल्ली के लिए जो उसके जज्बात अपनी जगह है। पर जिस बंदे को कन्फर्मेशन है कि भाई यीशु पे ईमान रखने वाला जो है वो खुदा की बादशाही में जाएगा, फिर वो यीशु की शुक्रगुजारी करता है, वो कभी चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। आमीन। फिर वो ऐसी रस्मों पर बिलीव नहीं करता, ऐसी रवायतों पर बिलीव नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ याद रखें यीशु जीवित है। आमीन। क्या है? यीशु जिंदा है। याद रखें यीशु की कब्र क्या है? खाली है। और यीशु पर ईमान रखने वाले भी क्या किए जाएंगे? जिंदा। आमीन। इसलिए मुतमिन होना है जिंदगी के अंदर, आखिरी सांस तक मुतमिन होना है, हर लम्हे मुतमिन होना है कि भाई बात ये है कि मैं बीमारी से, कमज़ोरी से, जिस तरह भी हो सके मैंने दुनिया से चला जाऊं, पर याद रखिए मेरी निजात में कोई रुकावट नहीं है। आमीन। क्योंकि यीशु ने मेरा कफ़ारा भी दिया है और मुर्दों में से जीतने के बाद पहला फल भी हुआ है। आमीन। उसने बताया है, बदन के साथ जिंदा होकर उसने बताया है। तो इसलिए याद रखिए कि
अगर मुखलसी हम ईमान रखते हैं मेरा मुखलसी देने वाला क्या है, जिंदा है। आमीन। कब्र में मैं उतर जाऊं वो जिंदा है। आमीन। हमारे हड्डियां इस बात पर मुतमिन होनी चाहिए यीशु जिंदा है। आमीन। सिर्फ होंठ नहीं, हमारे बदन का एक एक बाल ये गवाही दे यीशु कब्र में भी दे यीशु जिंदा है। आमीन। ये याद रखने की जरूरत है। सेकंड, हमें ये याद रखने की जरूरत है कि यीशु जिंदा क्यों है, क्योंकि यीशु इसलिए जिंदा है ताकि वो हमें नई उम्मीद दे। आमीन। कलाम में लिखा उसने जिंदा होकर पतरस के पहले बाब के अंदर गालबन 9वीं 8वीं आयत मुकस्सा होगी, लेकिन वो जिंदा हुआ और उसने हमें जिंदा उम्मीद दी। आमीन। कौन सी उम्मीद दी? जिंदा। और जिंदा उम्मीद जो है वो जिंदा यीशु ही दे सकता है। हालेलुया। जिंदा उम्मीद बोले, जिंदा उम्मीद जिंदा यीशु दे सकता है। अब यीशु मसीह ने, अब मैंने बताया कि याद रखना है। पहली बात क्या याद रखनी है? यीशु कौल का पक्का है। क्या है? यीशु का जी उठना इस बात की अलामत थी कि यीशु अपने कौल में क्या था? पक्का था। आमीन। और यीशु ने जो जो बात हमारे साथ की है वो 100% पूरी होगी। क्या होगी? 100% पूरी होगी, क्योंकि यीशु कौल का पक्का है। ये याद रखें। वो तूफानों को थमा सकता है, तो वो याद रखें वो आज भी जिंदा है और आज भी वो थमाने की कुदरत रखता है। आमीन। वो मुर्दे जिंदा कर सकता था और उसने किए, तो वो जिंदा है और वो आज भी कर सकता है क्योंकि वो जिंदा है। आमीन। उसने लंगड़ों को चलाया, आज भी चला सकता है। वो ये याद रखें। जब हम कई दफा भूल जाते हैं कि यीशु, जब परेशानी आती है ना तो भूल जाते हैं। ये याद रखिए कि यीशु जिंदा है। आमीन। और वो मुर्दों में से क्या है? जी उठा है। और जो वो जी उठा है ना, तो याद रखिएगा कि वो हमें भी कमजोर रहने नहीं देगा। वो आज भी अपनी कुदरत को हमारी जिंदगियों पर जाहिर करेगा। आमीन। और फिर उसका इस बात को याद रखना है कि वो अपने कौल में पक्का है। आमीन। इस बात को याद रखना है कि वो हमारा मुखलसी देने वाला क्या है? अगर हमारी सांसें बंद हो जाएंगे और हम मिट्टी में भी मिल जाएंगे ना, तो याद रखिए हम मिट्टी में नहीं रहेंगे, हम उस वक्त भी मुतमिन रहेंगे, क्योंकि हमारा यीशु क्या है? जिंदा है। और जिंदा फिर आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। आमीन। इसीलिए पौलुस उनको तसल्ली और उम्मीद देता है कि तुम नावाकिफ ना रहो, बल्कि इस बात को जानो कि जिंदा जो है ना वो आने वाला है। आमीन। क्योंकि देखिए बाइबल मुकद्दस जो है ना, आजकल जो गॉस्पेल है ना, वो इसे कहते हैं खुशहाली वाली गॉस्पेल। के लिए ये बड़ी सुनाई जाती है, क्योंकि इसको लोग सुनना चाहते हैं ना। लोग जो है आप मफाद की बात करना सुनना चाहते हैं, लोग दुनिया को डबल करने की बात सुनना चाहते हैं, लोग चीज़ों को बढ़ाने की बात सुनना चाहते हैं। लोग जो है वो कहते हैं नजात में छठो यार तो ज़मीन पे क्यों सादा साढ़े हाथ में। लोग शॉर्टकट पैकेज सुनना चाहते हैं। लोग जो है वो ये वाली बातें नहीं सुनना चाहते, और इसलिए चर्च जो है वो ये बातें नहीं करता। इसलिए चर्च जो है वो इन बातों से दूर होता जा रहा है, क्योंकि चर्च जो है वो अपने आने वाली जिंदगी से बेखबर, अपने फ्यूचर से बेखबर है। वो इसलिए जिस्मानी चीजें, वो कहता है यीशु को कबूल करके जस्ट जिस्मानी चीजों तक रसाई मिल जाए। क्या मिल जाए? सिर्फ दुनिया की चीजें वो पाना चाहता है, दुनिया की चीजों की भाग और दौड़ के अंदर है, और वो ऐसी गॉस्पेल सुनना चाहता है, ऐसे मनादों के पास जाना चाहता है जो सिर्फ उनके जिस्मानी छटकाने की बात करे। पर याद रखिएगा हकीकी गॉस्पेल जो है ना सिर्फ हमें दुनिया में बरकत देती है, बल्कि मरने के बाद भी हमें 100 गुना देती है। हालेलुया। क्या देती है? जिंदगी में तो देती है, पर मरने के बाद। इसलिए याद रखना है मेरा मुखलसी देने वाला क्या है? क्योंकि ये मुखलसी जो निजात है, ये निजात कब कैश होगी? निजात जीना मसीह। अब मुझे बताए दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस है जो बंदा मरने के बाद फायदा उठाए उसका? कोई ऐसा कारोबार, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट मिल भाई जिदा मरण तो बाद वारस बन जाए? उसने जो भी कमाया मरने के बाद उससे ले लिया जाएगा। और मैं आपको बताऊं सच्ची तौबा ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मरने के बाद भी आपको फायदा देती है। आमीन। नफा क्यों नफा है? क्योंकि मुखलसी देने वाला क्या है? जिंदा है।
आमीन। इसलिए जिंदा उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारनी है। आमीन। इसके साथ गुजारनी है। और जिंदा उम्मीद जो है, जिंदा उम्मीद कभी बिसार ना हो। कलाम में लिखा उसने हमें नए सिरे से पैदा किया जिंदा उम्मीद के लिए। आमीन। नए सिरे से पैदा किया किसके लिए? इसलिए जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, याद रखिए, वो नए उम्मीद, जिंदा उम्मीद के लिए पैदा हुए हैं। एज ए बलीवर, एज ए ईमानदार, ऐसे खुदा के लोग होते हुए कभी ना उम्मीदी की बातें ना करें, कभी मनफी बातें ना करें, कभी डिसहार्ड होने वाली बातें ना करें, कभी ये मरने और गिरने और रोने और धोने वाली बातें ना करें। हमेशा जिंदा उम्मीद की बातें करें। आमीन। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैंने पहले भी आपको सरमन में बताया था, देखिए हमारे पास दुनिया की तारीख हमारे सामने बड़ी है। जो कुछ आप कहते हैं वो आपके साथ होगा। बोले, जो कुछ आप कहेंगे वो आपके साथ होगा। अगर अच्छा कहेंगे, ईमान बोलेंगे, आपके साथ अच्छा होगा। अगर अपने लिए आप बुरी राय रखते हैं तो फिर आपके साथ वैसा ही होगा। हमेशा जिंदा उम्मीद वाली बात करें, हमेशा जिंदा ईमान वाली बात करें, हमेशा जिंदा रूह वाली बात करें, हमेशा जिंदा परस्तिश खुदावंद की करें। आमीन। जिंदा लोगों की तरह खुदावंद की परस्तिश करें। आमीन। और परस्तिश होती क्या है? मैंने बताया था ना एक दिन, परस्तिश ये नहीं है कि जस्ट माइक पे हम गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं। ये बड़े जरूरी काम है। ये बड़े, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं? ये हमारी बरकत के लिए लोग होते हैं, हमें इनकरेज करने के लिए लोग होते हैं। आमीन। ताकि ये हम इनके साथ मिलकर क्या कर सकें। और मजे की गल पता की जे परेशान ना वो तुम नहीं मेरे को परस्तिश करना नहीं। जो जलाली हो जावांगे ना, काम ही है करना है ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ खुदा ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਲਈ ਖਿਦਮਤ ਪਾਦੀ ਇਮਰਾਨ ਕੋ नहीं होएगी खोकर साहब, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ हालेलुया खावांगे हैं। ये सब खुदावंद के परस्तार होंगे हैं। हम तख्त के सामने किसकी परस्तिश करेंगे? तो मैं भी गावांगा, देखूंगा, खुदा की शुक्रगुजारी हो। आमीन। तो आप जरूर गाएं, मत सोचा करें कि मैं सही नहीं गा सकता। आप गाएं, ठीक है, लेकिन माइक वाले जरा ध्यान से गाएं, क्योंकि आपने लोगों को लीड करना होता है। आप जो पीछे हैं वो जरूर गाएं, ऊंची गाएं, जैसे मर्जी गाएं, क्योंकि जहाँ साज और आवाज मिलते हैं वहाँ खुदा का अबर ठहरता है। आगे बढ़ने वाला काम नहीं होता, ये फ्रोत और आजिज़ी का काम है, खुदावंद के लिए गाना और बजाना। आमीन। ये रूह की रहनुमाई वाला काम है। इसलिए हमेशा खुदावंद की परस्तिश करते रहे और जिंदा उम्मीद के साथ। हालेलुया। इसके साथ जी, जिंदा उम्मीद के साथ। आमीन। यीशु मसीह जी उठे, यीशु को याद रखिए। अब हम कई दफ़ा ऐलान करते हैं और मैं हैरान हूँ। मुझे कुछ साल पहले एक थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, एक थोड़ी सी ना जुस्तजू बन गई अदर नेशंस की बुक्स रीड करने की। मैं वो कुछ 7-8 महीने लाए और मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो रहा था। फिर मैंने उससे किनारा किया, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं ना, फिर उसके अंदर ना आपके अंदर वो चीज़ें, और मैंने कहा नहीं यार, मतलब चरिंदे आना, बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको बड़े तरीके के साथ करनी पड़ेंगी। ओके। अब मैंने कई ऐसी किताबें पढ़ी जिनमें बाइबल मुकद्दस के वाक़यात को हूबहू बयान कर दिया गया। हूबहू ऐसी किताबें मैंने पढ़ी। अब देखें, अगर यीशु जी उठे, यीशु को याद रखने का मतलब यह है इस बात पर ईमान रखना कि यीशु मसीह के पास इख्तियार है। आमीन। क्या है? यीशु मसीह के पास इख्तियार है। यीशु मसीह के पास क्या है? जी उठे, यीशु को याद रखने का मतलब यह है कि यीशु ने क्या दे दिया? निजात का काम मुकम्मल कर दिया। वो जिंदा है, उसने क्या किया है? निजात के काम को मुकम्मल कर दिया। अगर वो ना जी उठता, जी उठने का मतलब क्या कि यीशु जी उठा और उसने हमारे कफारे का काम को क्या किया? मुकम्मल किया। ये जी उठने का मतलब यह है कि हम अपनी निजात पर यकीन, कंफर्मेशन करें, अपने ईमान पर। और मैं बात कर रहा था कि यीशु, अब देखें बाइबल मुकद्दस में मैंने एक दफ़ा सरमन दिया था कि बहुत से मुर्दे जिंदा हुए। क्या हुए? पुराने यादनामा में भी, नए यादनामा में भी। चंद आपके ज़हनों में नाम होंगे। यार की बेटी होगी, है, बेवा होगी। और कैसी बात है, जब मैं बेवा की बात करता हूँ तो यीशु कितना कमाल है। वो बेवाओं को सहारा कैसे देता है? वो बेवा का बेटा जिंदा करके उसको सहारा देता है। हालेलुया। कैसे सहारा देता है?
हाँ, कमाल है ना यीशु, सहारा देने का तरीका भी कमाल है? तो अंडरस्टैंड कीजिए बात को। अब सिर्फ यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए तो ये बात इस बात का सबूत नहीं थी कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मुर्दे तो लिशा ने भी जिंदा हुआ, ठीक है। उसके बाद एक शख्स था जिन्हें आज जैसी मीटिंग करके बैठे हैं ना, उस सारी रात ही कलाम सुनता आया तो बैठा भी खिड़की के उत्ते, क्योंकि वो लगता बाला खाना बड़ा हुआ था और पता नहीं पौलुस ने कब की मुनादी शुरू की हुई थी। उस सरगी वेले ना जाट थले डिगा, ठीक है। तो जब नीचे गिरा बिल्डिंग से तो उसकी डेथ हो गई। हाँ, कहीं नींद ना देख जाने देना, तो खुदा की शुक्रगुजारी हो कि यीशु यहाँ मौजूद है। आमीन, हालेलुया। तो 3 मुर्दे जिंदा हुए। मैं लिस्ट पे गिरा, लेकिन मैं जिस बात पर की तरफ आपको लाना चाहता हूँ, वो जितने, अब ये जो दावा हम करते हैं कि यीशु मसीह क्या है, खुदा का बेटा है, यीशु मसीह कलमा है, लगोस है, यीशु मसीह ने कब्र और मोयन, देखिए गौर कीजिएगा, बहुत से जिंदा हुए और बहुत सौ ने किए। लाजर जिंदा हुआ, बेवा का बेटा जिंदा हुआ, यार की बेटी जिंदा हुई, उस शनीमी औरत का बेटा जिंदा हुआ, बहुत से लोग उन्हें जिंदा भी किए और जिंदा भी हुए। पर अगर यीशु मसीह सिर्फ जिंदा करता और उसके वसीला से जिंदा होते तो ये काम तो नबी भी कर सकते, नबियों ने किया और इससे पहले भी होता रहा। अब यीशु मसीह की लुहियत, यीशु मसीह के खुदा के बेटे होने का सबूत ये है क्योंकि वो जितने भी जिंदा हुए या जिंदा किए गए, वो नबियों में जो कलमा काम करता था उसके वसीला से जिंदा किए गए, उस लगोस के वसीला से जिंदा किए, उस इख्तियार के वसीला से जिंदा किए गए। और यीशु मसीह जी उठने का मतलब ये है कि यीशु मसीह अपने इख्तियार से जिंदा करता था और अपने इख्तियार से जिंदा हुआ है। हालेलुया, आमीन। कैसे? अपने इख्तियार से क्या करता था और अपने इख्तियार से क्या हुआ? जिंदा हुआ। आमीन। वो जी उठा है। आमीन। और उसने जी उठने के बाद कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और मैं क्या हूं? दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, वो जी उठा क्या है? हमारे साथ है। जो तो कोई भी नाल ना चले तो कहना यीशु जी उठा मेरे नाल है। उसके जी उठने की कुदरत जो है फिर हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू कर देगी। हालेलुया। उसके जी उठने का मुकाशफा हमें डिसहार्ड नहीं होने देगा, उसके जी उठने का रेविलेशन हमें ना उम्मीद नहीं होने देगा, उसके जी उठने का रेविलेशन जो है वो हमें कभी डिसहार्ड नहीं होने देगा, बल्कि हमें शुक्रगुजारी से भर देगा क्योंकि यीशु जी उठा है, उसने निजात के काम को मुकम्मल किया है। हालेलुया। अब क्या याद रखना है? यीशु जिंदा है। आमीन। मेरा मुखोसी देने वाला क्या है? मेरी निजात का बानी क्या है? और जो जिंदा है वही निजात दहिंदा है। हालेलुया। हाथों उठा के बोलिए, जो जिंदा है वही। इसलिए जहां नाउमीदी हो, एक आवाज आपके अंदर से आए, यीशु जिंदा है। आमीन। जहां डिसहार्ड हो, क्या आवाज आनी चाहिए? एक पूरा साल गाया करो हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया है, क्योंकि वो जिंदा है, वो जिंदा है। आमीन। जहां आपके लिए दरवाजे बंद हो जाएं, आपको कुछ दिखाई ना दे, कुछ सुनाई ना दे, कुछ नजर ना आए, तो एक आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए, यीशु जिंदा है और वो जिंदा मेरे लिए राह बनाने की कुदरत रखता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस के जितने नाम है ना बड़े मजेदार है। अब यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी। यीशु ने कहा क़यामत भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। आमीन। यानी जिंदगी भी मैं देने वाला और फिर जिंदा करने वाला भी मैं हूं। और यीशु ने अपने दावों को साबित किया। आमीन। इसलिए आज इस खुशखबरी को अपने साथ लेकर जाइए, अपने ज़हनों में बिठा के जाइए और अपने साथ बात कीजिए कि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। फिक्रा आरिया ने आवाज की आए, कमजोरियां ने
दरवाजे बंद हैं क्योंकि आपका खोलने वाला, आपके लिए जंग लड़ने वाला, आपके लिए खड़ा होने वाला, आपके लिए मुझसे करने वाला, आपको रहाई देने वाला, आपको होप देने वाला और आपके आगे हरी सारी मुश्किलों को दूर करने वाला जिंदा है। हालेलुया। तो फिर यीशु जिंदा हुए ते असी भी दलेर होके हालेलुया हमेशा ये पता के नारे के साथ जिंदगी गुजारे, मेरा यीशु जिंदा है। आमीन। आप उस जिंदगी के आखिरी स्टेज पर हों और जहां डॉक्टर कहे आप जो है बस खत्म हो गए हैं, तो आपके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, ये सफर तो खत्म होना ही था पर मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। इस कदर मुतमिन हो जाइए खुदावंद में, इस कदर खुश जाइए खुदावंद के साथ, आप कभी भी सहार ना हो, कभी ना उम्मीद ना हो, क्योंकि यीशु आपका जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि जहां दुनिया आपके लिए कुछ नहीं ना कर सकती, वहां यीशु आपके लिए मरने के बाद भी आपके लिए करने वाला है। हालेलुया। इसलिए जो जिंदा है ना वही, इसलिए उसी ने निजात के काम को मुकम्मल किया है, आप भी निजात में जिंदगी गुजारें। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सुर को जल्दी से